Good evening, all my dear students. I hope you all are doing well at your home. Yes, this is your maths class, and you know that we are doing our chapter number 12 and its name is measurement 1. So as you know that yesterday we discussed standard unit of weight, and what is the standard unit of weight? Yes, it's gram. And we also discussed that 1 kilogram is equal to 1000 grams. So today we are going to convert kilograms into grams as we convert meters into centimeters. Meters को जैसे हमने centimeters में convert किया था, in the same way we convert kilograms into grams. इसी तरह से हम kilograms को change करेंगे grams के अंदर. Okay, so we know that 1 kilogram is equal to 1000 grams. Now we want to change this 4 kilogram into grams. अब हम चाहते हैं कि 4 kilograms को हम change करें किसमें? grams के अंदर. Okay, so you know that how we can write this 4 kilogram. हम 4 kilogram को change करेंगे अब grams के अंदर. So we can write it 4 multiply 1. It means 4 ones are 4, right? 4 multiply 1 is equal to 4. And kilograms remains as it is, right? So 4 multiply 1 is equal to 4. Is it correct? कि 4 multiply 1 हमारा 4 के ही equal होता है. And you know the value of 1 kilogram is equal to 1000 grams. 1 kilogram की value क्या होती है? 1000 grams होती है हमारी, right? So we put here value of 1 kilogram. हमने 1 kilogram की value उठा के रख दी है यहाँ पे. ठीक है, 1 किलोग्राम की जगह पे हम नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे? जो इसकी वैल्यू है ग्राम्स के अंदर हमने वो रख दिया. क्यों? क्योंकि 1 किलोग्राम और 1000 ग्राम्स बोथ आर द सेम थिंग, दोनों सेम ही है. मीन्स कि 1 किलोग्राम की जगह पे आप ग्राम्स भी आ सकते हैं यहाँ पे 1000 ग्राम्स. सो वी पुट हियर द वैल्यू ऑफ 1 किलोग्राम. नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या किया? 4 मल्टीप्लाई 1 किलोग्राम की जगह पे हमने यहाँ पे 1000 ग्राम्स राइट किया. Right? Now we multiply 4 multiply 1000. अब हमने 4 and 1000 को multiply किया है. So you know that how we can multiply the numbers. हम multiply कैसे करते हैं numbers को? Don't need to multiply like this. ऐसे multiply मत करने बैठना है यहाँ पे. ठीक है? As I already told you that you multiply 4 with 1. आप 4 को सिर्फ 1 से multiply करिएगा and count how many zeros we have given after this 1. जितने जीरोस इसके पीछे रिटर्न हैं आप इतने जीरोस इनके पीछे राइट कीजिएगा. 4 ones are 4 and 3 zeros we have given after this one. 3 zeros given है, so count and write same zeros after this 4. So we have given here 3 zeros, so we write here 3 zeros. So answer will be 4000 grams. 4 ones are 4 and 3 zeros हमने write किया, so this it becomes 4000. So it means that 4 kilogram is equal to 4000 grams. Yes, now your question number 1 of your let's try 5 and its B part is, what is question number 5? That convert kilograms into grams. We have to convert kilograms into grams. आपको kilograms given है and आपको वो grams में change करना है. So its B part is, question number first and its B part is 6 kilograms and 350 grams. Now we want to change it in grams. हमें ये किस में change करना है? grams में. But you know that we have given this already in grams. ये तो हमारा already grams में ही है. So we have to convert this kilograms, 6 kilograms into grams first. And we know that 1 kilogram is equal to 1000 grams. 1 kilogram हमें 1000 grams के equal given है. So 6 kilograms is equal to, yes, जैसे हमने last question किया था same हम उसी तरह से करेंगे इसको. We know that 6 is equal to 6 multiply 1. 6 is equal to होता है किसके? 6 multiply 1. Okay, so 6 is equal to 6 multiply 1 kg and we know the value of 1 kg in grams. 1 kg की value grams में क्या होती है? 1 kg is equal to 1000 grams, right? Now 6 multiply 1000 grams is equal to
हाउ वी कैन मल्टीप्लाई 6 विथ 1000? 6 को हम 1000 से कैसे मल्टीप्लाई करेंगे? 6 1s are 6 and we write 3 zeros after this 6. 6 1s are 6 and जितने zeros हमारे पीछे हैं उतने ही zeros हमने यहाँ पे राइट किए. So 6 multiply 1000 is equal to 6000 grams. It means that 6 kg is equal to 6000 grams. 6 kg किसके इक्वल हो गया? 6000 grams. But we want to change this complete unit in grams. हमें ये पूरा का पूरा चेंज करना है ग्राम्स के अंदर, right? So 6 kilograms is equal to 6000 grams. And what about this 350 grams? इस 350 grams का क्या करना है? It is already in grams. So in last we have to add both the grams. आपको देखिएगा 6 kilogram and 350 grams. This is equal to 6 kilogram is equal to 6000 grams and yes 6 kilogram is equal to 6 kilogram is equal to 6000 grams. 6000 grams है and this 350 grams we add this 350 grams क्योंकि 350 ग्राम्स तो ऑलरेडी हमारे पास था ही. सो हमने क्या किया? इन दोनों को ऐड किया एंड दिस इज इक्वल टू 6350 ग्राम्स. जैसे हम मीटर से सेंटीमीटर्स में चेंज करते थे सेम उसी तरह से हमें किलोग्राम से ग्राम्स में करना है. वहां पे हम मल्टीप्लाई करते थे 100 से, यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे हम 1000 से. ओके एंड बाकी पूरा प्रोसेस हमारा सेम ही है. Now we want to convert grams into kilograms. Now we have given grams. अभी हमें given grams होंगे and we have to convert it into kilograms. और अभी हमें उसको kilograms में change करना है. So let's do question number 2 of let's try 5. Its A part is 3480 grams. 3480 grams हमें given है and we want to change it in kilograms. हमें उसको kilograms में change करना है. So we know that 1000 grams is equal to 1 kilogram. 1000 grams 1 kilogram के इक्वल है. जैसे अब हमने किया था कि मीटर्स से सेंटीमीटर्स चेंज करते थे, देन वी मल्टीप्लाई इट विद 100. तो हम 100 से मल्टीप्लाई करते थे. बट व्हेन वी चेंज सेंटीमीटर्स इनटू मीटर्स, जब हम सेंटीमीटर से मीटर्स में चेंज करते थे देन वी डिवाइड द नंबर. तो हम क्या करते थे? डिवाइड करते थे. जब हम छोटी यूनिट से बड़ी यूनिट में जाएंगे तो हम डिवाइड करेंगे. सो हेयर ऑल्सो ग्राम इज स्मॉलर यूनिट एंड किलोग्राम इज बिगर यूनिट. ग्राम छोटी यूनिट है और किलोग्राम हमारी बड़ी यूनिट है. तो जब भी हम छोटी यूनिट से बड़ी यूनिट के अंदर जाएंगे तो हम क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे. ओके सो 3480 grams 3480 grams एंड वी वांट टू चेंज इट इन किलोग्राम्स. हम किलोग्राम्स में चेंज करेंगे. ठीक है. सो हम क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे इसको 1000 से बिकॉज 1 किलोग्राम इज इक्वल टू 1000 ग्राम्स. सो हम इसको 1000 से डिवाइड करेंगे. या तो आप इसको ऐसे लॉन्ग मेथड से डिवाइड कीजिएगा या फिर आप इसको फ्रैक्शन में राइट करके, जैसे हमने लास्ट चैप्टर में भी किया था कि इसको पहले फ्रैक्शन में चेंज करेंगे. ठीक है. सो हाउ वी कैन चेंज दिस डिविजन स्टेटमेंट इन फ्रैक्शन स्टेटमेंट्स? That we write first number as it is, then we put this line under this first number. हम इस लाइन को राइट करेंगे किसकी जगह पे? दिस डिविजन की जगह पे. ठीक है. जो डिविजन सिंबल है इसकी जगह पे we put this line. And what about this last number? We put or we can write this as denominator. हम लास्ट नंबर को डिनोमिनेटर में राइट करेंगे. राइट. What is numerator and what is denominator? जो नंबर अप में होगा, टॉप में होगा, that is numerator, and which is written in down, जो डाउन में रिटर्न होगा that is denominator. उसको हम क्या कहेंगे? denominator. Okay. So 3480 divided by what? 1000. वो 1000 से डिवाइड करेंगे. So without dividing it like by long method, हम इसको बिना long method से डिवाइड किए कैसे डिवाइड करते हैं? I already told you in the last exercise also. जब when we convert centimeters into meters, जब हम सेंटीमीटर से मीटर्स में कन्वर्ट कर रहे थे तब भी मैंने आपको बताया था that there is no need to divide this number by long method. आपको long method से डिवाइड करने की जरूरत नहीं है. आप सिंपली इसको
ऐसे शॉर्टकट से भी डिवाइड कर सकते हैं, दैट काउंट द नंबर्स ऑफ जीरोस। आप नंबर ऑफ जीरोस को काउंट कीजिएगा 1 2 3 एंड आप ऊपर से भी डिजिट्स काउंट कीजिएगा फ्रॉम इट्स बैक साइड 1 2 3, ठीक है। एंड 3 डिजिट्स के बाद में 1 2 3 जितने नंबर ऑफ जीरोस डिनोमिनेटर में होंगे उतने ही आप न्यूमरेटर से डिजिट्स काउंट कीजिएगा फ्रॉम इट्स बैक साइड 1 2 3 एंड 3 नंबर्स के बाद में आप पुट कीजिएगा डेसिमल। ओके, सो वी राइट इट हियर 3480 एंड 1 2 3 आफ्टर काउंटिंग 3 डिजिट्स के बाद में बैक साइड से हम क्या पुट करेंगे, डेसिमल। एंड जो डेसिमल के फ्रंट में होगा नंबर, ठीक है, दिस इज द किलोग्राम एंड जो बैक साइड में होगा वो क्या होगा हमारा, ग्राम्स। इट मीन्स दैट दिस इज 3 किलोग्राम एंड 480 grams. Okay, and we can solve it with the help of this method also. आप इससे भी सॉल्व कर सकते हैं, कोई मिस्टेक नहीं होगी, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आप आप इसको डायरेक्ट भी डिवाइड कर सकते हैं एंड आप इसको लॉन्ग मेथड से जैसे आप करते आए हैं वैसे भी कर सकते हैं। नाउ वी डिवाइड दिस 3480 बाय 1000। हम 1000 से डिवाइड करेंगे। सो 1000 की टेबल में चेक कीजिएगा कि 3480 कहाँ पे आता है। सो यू नो दैट 1000 1 1000, 1000 2 2000, 1000 multiply 3, 1000 3 3000, 1000 4 4000, right? And our 3480, it lies between 3480, it lies between 3000 and 4000। ये हमारा कहाँ पे लाई करेगा, 3000 and 4000 के बीच में। सो वी राइट हेयर द स्मॉलर वन, हम स्मॉलर नंबर यहाँ पे राइट करेंगे। सो वी राइट हेयर 3000। तो हमने यहाँ पे क्या राइट किया, 3000। ऑन सब्ट्रैक्टिंग इट, जब हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे सो वी गेट 480 एज रिमाइंडर एंड वी राइट हेयर 3, क्योंकि 1000 की टेबल में 3000 कहाँ पे आता है, 3 पे। सो दिस इज द किलोग्राम एंड द रिमाइंडर इज ग्राम। ये 480 ये क्या था यूनिट हमारा, ये ग्राम्स में था। तो लास्ट में जो नीचे बच गया है वो क्या है हमारा, ग्राम्स ही तो बचा है, ठीक है। क्योंकि 3480 में से जब हमने 3000 जो हमारे ग्राम्स थे वो माइनस कर दिए तो ये बच क्या गया हमारा, दिस इज ग्राम्स ही, तो ग्राम्स ही बचे। और ये 3000 जो ग्राम्स थे उसको हमने चेंज कर दिया है, दिस इज किलोग्राम। सो ये हमारा किलोग्राम है एंड दिस रिमेनिंग जो ये बचा हुआ है दिस इज ग्राम्स। ये ऑलरेडी ग्राम्स में ही है हमारा। ओके, लेट्स डू वन मोर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 एंड इट्स बी पार्ट। 4750 grams, so we have to change it into kilograms. So we know that 1000 gram is equal to 1 kilogram, so we write 4750 grams, we want to change it in kilograms. So what we have to do, we divide this with 1000। तो हम इसको क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे 1000 से, right? Now we change it in fraction form। हम इस डिविजन स्टेटमेंट को फ्रैक्शन फॉर्म में चेंज करेंगे। So we write this first digit as it is, then we write this division as underline, हम लाइन अंडरलाइन करेंगे एंड द लास्ट डिजिट, जो लास्ट डिजिट था हम उसको किस में राइट करेंगे, एज इन डिनोमिनेटर, हम डिनोमिनेटर में राइट करेंगे। सो नाउ दिस इज द फ्रैक्शन फॉर्म ऑफ दिस डिविजन स्टेटमेंट। हमने ये डिविजन स्टेटमेंट का फ्रैक्शन फॉर्म राइट किया है। नाउ वी डिवाइड इट। अब हम कैसे मार्क करेंगे इसका, हम लास्ट से काउंट करेंगे 3 कितने जीरोस हैं डिनोमिनेटर में। सो देयर आर 3 जीरोस। तो हमने क्या किया, 4750 को हमने एज इट इज राइट किया एंड जितने डिनोमिनेटर में जीरोस थे इतने हमने बैक साइड से काउंट किए डिजिट्स, 1 2 3 डिजिट्स काउंट किए एंड आफ्टर 3 डिजिट्स के बाद में हमने क्या लगा दिया, बैक साइड से डेसिमल, ठीक है। आपको बैक साइड से वंस प्लेस से ही काउंट करना है, नॉट फ्रॉम द फ्रंट साइड। आपको हाईएस्ट प्लेस से काउंट नहीं करना है, आपको बैक साइड से काउंट करना है, ठीक है। 1 2 3, सो 1 2 3 डिजिट्स के बाद में हमने डेसिमल पुट किया एंड दिस 4 इज किलोग्राम एंड 750 इज ग्राम्स। ओके, और वी कैन डू इट बाय डिविजन मेथड। हम डिविजन मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं। 4750 को जब हमने
1000 से डिवाइड किया है, देन वी गेट कि 1000 के टेबल में 4750 तो नहीं आता है, बट 4750 लाइज बिटवीन 4000 एंड 5000. 4000 एंड 5000 के बीच में आता है. सो वी राइट हियर 4000. ओके, सो हमने यहाँ पे 4000 राइट किया. ओके, एंड ऑन सब्ट्रैक्टिंग दिस वी गेट 750 ग्राम्स. ये 750 ग्राम्स हमारा बच गया है. एंड यहाँ पे 4000 कहाँ पे आता है 1000 के टेबल में? 4s पे. सो वी राइट हियर 4. ओके, सो दिस 4 is kg and the 750 is grams.